پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی کوڈ کاپٹر کو مار گرایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے بھارتی کوڈ کاپٹر سے جاسوسی کی کوشش کی گئی۔ دھمبر کے مناور سیکٹر میں دشمن نے کوڈ کاپٹر سے جاسوسی کی کوشش کی۔ واقعہ پاک فوج کی مستعدی، پیشہ ورانہ مہارت، دفاعی تیاری کا ثبوت ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی میڈیا کا ہندوؤں کو نشانہ بنانے کا تاثر دینے کا پروپیگنڈا ناکام ہو گیا۔ بھارت کے متعصب میڈیا اینکر رمیش دیوگن کے پروگرام میں پہلگام واقعے کو ہندوؤں پر حملہ قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ سیاح سے سوال کے جواب پر اینکر کو منہ کی کھانا پڑی۔ سیاح کا کہنا تھا، مقامی کشمیریوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہمارا تحفظ کیا، زخمیوں کی مدد کی اور متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقلی میں پیش رہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی فوج بوکھلاہٹ کا شکار۔ ذرائع کے مطابق 25-26 اپریل کی شب ایل او سی پر بھارتی فوج کے 2 یونٹس نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی، جس میں 5 سکھ فوجی ہلاک ہو گئے۔ واقعہ لائن آف کنٹرول جاپالا برج بارامولہ سیکٹر میں دوران پیٹرولنگ پیش آیا۔ واقعے کے بعد سکھ لائٹ انفینٹری کے سکھ جوانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ بھارت کی جانب سے عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی۔ بھارت سے وطن واپسی پر پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کو ہراساں کیا گیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن عملہ اٹاری بارڈر پہنچا تو بھارتی عملے نے پاسپورٹ لے لیے۔ بھارتی فوج اور پولیس کی موجودگی میں بھارتی میڈیا کے نمائندے پاکستانی سفارتی اہلکاروں سے بدتمیزی کرتے رہے۔ بھارت کی اشتعال انگیزی سے پاکستان نے دوست ممالک کو آگاہ کر دیا۔ پہلگام واقعے پر بھارت کی غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے بعد وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مختلف ممالک کے ہم منصب سے فون پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے اماراتی ہم منصب کو بھارتی الزامات، اشتعال انگیز بیانات اور یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یو اے ای کے وزیر خارجہ نے علاقائی استحکام، تحمل اور پرامن حل پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے بھی فون پر بات کی، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریفنگ دی۔ پاک بھارت صورتحال پر ترک صدر طیب اردوان نے کہا، دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں جلد از جلد کمی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان اور بھارت کے لیے قابل قبول کسی بھی اقدام کی حمایت کریں گے۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا بیان، کہا ہر اس اقدام کی حمایت کریں گے جس سے پاک بھارت تناؤ میں کمی اور بات چیت دوبارہ شروع ہو۔ مشکل ترین مسائل بھی معنی خیز اور مثبت بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ کشیدگی کو روکنے کے لیے دونوں ممالک انتہائی تحمل سے کام لیں۔ بھارت نے در اندازی کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا، کہا فضائی حدود کی خلاف ورزی یا کوئی زمینی کارروائی ہوئی تو ہم ہائی الرٹ اور بالکل تیار ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ بھارت پاکستان میں در اندازی کی کوشش کرے گا۔ پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، معصوم جانوں کا نقصان ہوا اور اس واقعے کے بعد بھارتی فورسز نے وادی میں دہشت گردی کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ بے گناہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جعلی مقابلوں میں شہید کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں آج دہشت گردی کا راج ہے۔ بھارت پر خوف طاری، سچ چھپانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس اکاؤنٹ بھارت نے بلاک کر دیا۔ گزشتہ روز بھارت نے یوٹیوب پر ARY نیوز سمیت 16 پاکستانی چینلز کی نشریات بلاک کر دی تھیں۔ مودی سرکار نے بھارتی میڈیا کو پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو بھی شو میں مدعو کرنے سے روک دیا۔ پاکستانی عوام نے مطالبہ کیا ہے پاکستان میں بھارت کے یوٹیوب چینلز کو بھی بلاک کیا جائے۔ پہلگام فالس فلیگ بھارتی وزیر اعظم آفس کی پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو بھارتی چینلز پر مدعو کرنے پر پابندی کی ہدایت۔ RT نیوز کے مطابق مودی نے بھارتی میڈیا کو پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو مدعو کرنے سے روک دیا۔ بھارتی میڈیا کو پاکستانی اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کو شو میں بلانے کا کہا گیا ہے۔ گزشتہ روز احمد حسن عربی نے ارنب گوسوامی کے شو میں تلخ حقائق بیان کیے تھے۔ بھارتی جھوٹا پروپیگنڈا اور منفی مہم بے نقاب ہونے پر مودی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار۔ مودی سرکار نے پاکستان کے معتبر ترین نیوز چینل ARY نیوز کو بھارت میں بلاک کر دیا۔ ARY نیوز نے حقائق دکھا کر پہلگام واقعے کے جھوٹ کا پردہ چاک کیا تو بھارت تل ملا اٹھا۔ مودی سرکار نے بھارت میں ARY نیوز سمیت 16 پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بلاک کر دیا۔ جیسے کو تیسا پاکستان میں بھی بھارت کے یوٹیوب چینلز کو بلاک کیا جائے، عوام کا مطالبہ۔ بھارتی قابض فوج نے مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں سماجی کارکن کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کا کہنا ہے قابض فورسز نے 43 سال کے غلام رسول کے گھر پر دھاوا بولا
तोड़ फोड़ और फायरिंग की। काबिज फोर्सेज ने श्रीनगर में 36 मकामात का मुहासरा कर रखा है। खवातीन और बच्चों को हिरासा, कई घर भी मस्मार कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल का भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्जामात पर करारा जवाब। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय मंदूब ने मकबूजा कश्मीर में रियासती मजालिम के हकायक छुपाने की कोशिश की। कोई भी बयान मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती जुल्म को छुपा नहीं सकता। पाकिस्तान को इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का एलामिया सिंध के लोगों की कामयाबी है। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सदर ने मुझसे पहला सवाल नहरों के मामले पर किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो का हुक्म था, जो मैंने कहा है वो मंजूर करवाओ वरना उठ कर आ जाना। कोई शरारत करना चाह रहा था, वो कामयाब नहीं हुआ। रेकोडेक मंसूबे के लिए 6 अरब 40 करोड़ डॉलर सरमायाकारी की राहें खुलने लगी। ज़राए का कहना है, मंसूबे में सरमायाकारी के लिए फाइनेंशियल क्लोजर आइंदा माह होने का इम्कान है। अमरीकी, बरतानवी एक्सिम बैंक और आलमी बैंक फाइनेंशियल क्लोजर में शामिल हो सकते हैं। वफाक, बलोचिस्तान, एशियाई तरक्याती बैंक फाइनेंशियल क्लोजर में शामिल होंगे। फाइनेंशियल क्लोजर मुकम्मल होने पर 3 साल तक पैदावार शुरू हो सकेगी। प्रोडक्शन के पहले साल वफाक और बलोचिस्तान को 3 अरब डॉलर मिलने का इम्कान है। जामिया कराची को पानी फराहम करने वाली 84 इंच फुटर की लाइन में शगाफ। जामिया कराची स्टाफ कॉलोनी ज़ेरे आब आ गई। वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा होने की वजह से निकासी के अमल में 5 से 6 घंटे लगेंगे। बानी पीटीआई से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर समेत 6 वकला की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेज दी गई। बानी पीटीआई की बहनें भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगी। फहरिस्त इंतजार पंचोता की जानिब से भेजी गई। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोरी का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने मौलाना को भारत के एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के फैसलों पर एतमाद में लिया। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से भी आगाह किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में जहां कोई महाज मिलेगा, मोदी वहां खड़ा होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान का नाम शामिल। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की मंजूरी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जुलाई 2024 में पाकिस्तान को नए प्रोग्राम की मंजूरी दी। तौसीई फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान को 37 माह में 7 अरब डॉलर मिलेंगे। IMF इससे पहले सितंबर 2024 में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर से ज़ायद दे चुका। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान का नाम शामिल। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की मंजूरी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जुलाई 2024 में पाकिस्तान को नए प्रोग्राम की मंजूरी दी। तौसीई फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान को 37 माह में 7 अरब डॉलर मिलेंगे। IMF इससे पहले सितंबर 2024 में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर से ज़ायद दे चुका। जब तक सूबों में इत्तेफाक नहीं होता, कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। CCI में फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास। एलामिया जारी। केनाल से मुतालिक 7 फरवरी का इकनिक का फैसला मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत को इरसा की जानिब से जारी पानी दस्तियाबी के सर्टिफिकेट खत्म कर दिया गया। इजलास के सरकारी मिनट ARY न्यूज़ पर। मुश्तरका मुफादात कौंसिल इजलास में एक्निक से मंजूर मनसूबा वापस। एक्निक से मंजूर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इरिगेशन नेटवर्क पर अब काम नहीं होगा। दरियाई सिंध पर नहरों की तामीर रोकने और मंसूबा खत्म करने से समेत मसले से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें ARY न्यूज़ ने सबसे पहले नशर की। सिंध की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। जब तक बाहमी इत्तफाक नहीं हो जाता, नई नहरें नहीं बनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दरियाई सिंध पर नहरों के मसले को वज़ीर आज़म ने अहम समझा। शुक्रगुजार हूँ कि अहम मामले को खुश उसलूबी के साथ हल किया जा सका। जो लोग नफरतें फैलाना चाहते थे, वो अब नाकाम हो चुके हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, सिंध के लिए खुशखबरी है। नहरों से मुतालिक मुतालिबा मान लिया गया है। हर सूबे को इसके हिस्से का पानी दिया जाएगा। हम किसी सूबे के हक किसी दूसरे को खाने नहीं देंगे। दरियाई सिंध से नई नहरों के मंसूबे का खात्मा किसी सियासी जमात नहीं, सूबे के अवाम की मुश्तरका कामयाबी है। हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा कहते हैं, बादशाह अवाम ने सख्त मौसम में भी सूबे भर में हक के लिए एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कामयाबी मिली। हमारी सरहदों पर जंग के खतरात मंडला रहे हैं। अब मुजाहिरीन सड़कें और रास्ते खाली करके घरों को लौट जाएं। तमाम हाईवेज और रास्ते खुले होने चाहिए।
सिक्योरिटी मामलात के हवाले से नकलो हमल में कोई रुकावट हायल न हो। जनूनी मुद्दे किसी भी किस्म का एडवेंचर कर सकता है। कौम मुत्तहिद होकर पाक फौज की शाना बशाना खड़ी हो जाए। मुसल्ला अफवाज मादे वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत की पूरी सलाहियत और कुव्वत रखती है। जियारत के इलाके क्वांची डैम चौतीर से 7 अफराद की लाशें मिली हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तहकीकात के बाद हकायक मालूम होंगे। बुशरा बीबी को जेल में अलग कशादा कमरा दिया गया जिसमें मैट्रेस, कुर्सी, टेबल, किताबों की अलमारी, LCD मौजूद हैं। मौसम गर्मा की मुनासबत से रूम कूलर फराहम किया गया। अलग किचन भी दिया गया। जेल सुप्रिटेंडेंट ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी का 2 बार तिबी मुआयना किया जाता है। अदालत की आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी के वकील को रिपोर्ट पर मौक़िफ़ देने की हिदायत। ATC ने 26 नवंबर के 29 मुकदमा बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 20 मई तक तौसी कर दी। अदालत का बानी PTI और वकला की मौजूदगी में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोट में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी, ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। कराची के शहरियों को सफरी सहूलतें फराहम करना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। EV टैक्सी सर्विस के आगाज से शहरियों को सहूलत मिलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का अपनी ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा टैक्सी सर्विस को एक प्लेटफॉर्म के तहत मुनज़्ज़म किया जाएगा। कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस रवा साल जून तक पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। इस्लामाबाद से पहली परवाज 393 आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना हो गई। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने आज़मीन को रुखसत किया। बलोचिस्तान से भी पहली परवाज 152 आज़मीन को लेकर मदीना रवाना। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स तैयार किए गए हैं। हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में आज भी शदीद गर्मी। सिब्बी, नवाबशाह में दर्जा हरारत 47, जेकबाबाद, रहीमिया खान, लाड़काना और दादू में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42, पिशावर में 43, कराची 37 और कोयटा में 36 डिग्री रहने का इम्कान। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में झक्कड़ चलने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पार्कों में बच्चों के लिए झूले और दीगर सहूलतें फराहम करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा हर यूनियन काउंसिल में मीटिंग हॉल, काउंसिल रूम और सेक्रेटरी ऑफिस बनाए जाएंगे। तारीख का सबसे बड़ा सफाई प्रोग्राम सुथरा पंजाब कामयाबी से जारी है। शहरी सूबे को साफ बनाने के लिए अपना फर्ज भी निभाएं। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से चेयरिंग क्रॉस पर धरने में शरीक 70 से जायद शुरका गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी का रात गए ऑपरेशन। पुलिस ने चेयरिंग क्रॉस धरने के शुरका का सामान भी उठाकर फेंक दिया। कनाडा के इंतखाबात में लिबरल्स ने चौथी बार मैदान मार लिया। वज़ीर आज़म मार्क रॉनी ने विक्ट्री स्पीच में कहा यह पार्टी का कम बैक है, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। लिबरल्स ने 163 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। रूस का 8 मई से यूक्रेन में 3 रोजा जंग बंदी का ऐलान। यूक्रेन में सरोजा सीज फायर का फैसला इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया गया। क्रेमलिन के मुताबिक फौजी कार्रवाइयां 8 मई से 11 मई तक मुअत्तल रहेंगी। ईरान की सबसे बड़ी कमर्शियल बंदरगाह पर धमाकों के बाद आतिशज़दगी, अमवात की तादाद 70 हो गई, 1200 से ज्यादा जख्मी। आग पर ताहाल मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका है। वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का कहना है जिम्मेदारों की शिनाख्त कर ली, हादसा एहतियाती तदाबीर में गफलत के बाइस पेश आया। PSL 10 में आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। मैच लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची किंग्स का PSL में फतह के साथ वापसी का मिशन। खिलाड़ी मुल्तान के खिलाफ मैच के लिए आज तैयारी करेंगे। लाहौर के LCCA ग्राउंड में तमाम खिलाड़ी ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। कराची और मुल्तान के दरमियान मैच जुमेरात को लाहौर में खेला जाएगा। किंग्स ने अब तक मेगा इवेंट्स में 3 कामयाबियां हासिल की हैं। और PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान अदाकार फहद मुस्तफा, खेलेंगे मासूमाना खेल। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।